Good morning, dear students. Neha ma'am here. So today we have to start our new chapter of class 6 science, chapter 15, air around us. So let's start now. So chapter number 15, air around us. Air means हवा. जो हवा हमारे चारों तरफ है, it means the air around us. You all can feel air. Air can be hot, air can be cool also, it can be cold air also. Yes, and because of the air, as you know, we can do different activities, we can perform different activities. So let's start and let's enjoy the different activities which we can do with the help of air around us. Okay, so we have learned in chapter 9 that all living things require air, but have you ever seen air? आपने चैप्टर 9 में इस चीज़ रीड की थी कि लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर, लिविंग थिंग्स को एयर की ज़रूरत होती है. ठीक है, इन चैप्टर 9 इट वॉज about living things and non-living things. So living things require air, which is very important, essential for living on this earth, for our life. But have you ever seen air? Yes or no? Ask from yourself. No, we have not seen air, but because air can feel, we can feel air, but we cannot see with our eyes. Suppose I have or you are feeling hot and just you on your fan at your home. Then what happened? You feel relaxed, isn't it? Yes. And when you feel relaxed, when the cold air surrounds the area where you are standing, then you feel relaxed. Is it true now? So air is very important, essential part of our life. Okay, so you might have seen air. No, we have not seen air, but surely we must have felt its presence in so many ways. Yes, we have feel it, we have felt its presence in many ways. So have you noticed it when the leaves of the trees rustle? जब जो लीव्स होती हैं ट्रीज की वो रस्टल करती हैं, ठीक है, हिलती हैं, ठीक है, एयर के ब्लो से वो ब्लो होती हैं, मूव होती हैं. और द क्लोथ्स हैंगिंग ऑन द क्लोथ्स लाइन स्वाई, या आपके जो क्लोथ्स हैंग होते हैं क्लोथ्स लाइन पे, ठीक है, वो स्वै करते हुए मूव करने लगते हैं, sway करते हैं, to and fro sway. Pages when the fan is switched on, and you know the pages of your open book, if your book is open and then suddenly air, because of the air came into from the window inside your room, then what happened? They begin to fluttering. Is it true ना? वो flutter करना शुरू हो जाते हैं. और when the fan is switched on, या तो या एयर मिलती है उसे, मे बी द एयर यू आर गेटिंग फ्रॉम द फैन यू स्विच ऑन, और यू आर गेटिंग द एयर फ्रॉम द आउटसाइड द विंडो. इफ द विंडो इज ओपन, देन व्हाट हैपन? द पेजेस ऑफ योर ओपन बुक गेट फ्लटरिंग. यस, सो द मूविंग air makes it possible for you to fly your kite. It means many activities we are able to do with the help of air. If there is air, the direction, in the direction of blowing of air, then only we are in that direction only we are able to fly the kite, isn't it? So do you remember activity 3 in chapter number 5, in which you spread the sand and sawdust by winnowing? आपने separation of substances में chapter number 5 में winnowing term learn किया था. We have learned about winnowing. What is winnowing? Winnowing is the process in which we separate lighter particles from heavy particles with the help of wind. Isn't true? Yes. So if we have separated, say we have separated sand and sawdust, हमने sand और sawdust को separate किया था. How? With the help of winnowing. Winnowing is more effective in moving air, and you know winnowing process which is used in the separation of substances by the farmers. Yes, that is the most effective in moving air, because if air is moving, if the air is blowing, then only the winnowing process
विल बी मोर इफेक्टिव, क्योंकि उससे क्या होता है, बाय विंड, बिकॉज विनोइंग प्रोसेस मीन्स separation of lighter substances from the heavier substances with the help of wind. And if wind is there, blowing air is there, moving air is there, then this process will be very effective. You may have also noticed that during storms the wind blows at a very high speed. और आपको पता है जो storm है, storm भी किसकी फॉर्म होती है, एयर की फॉर्म होती है, ठीक है, एयर, then breeze, soft wind, then your storm, strong wind. Then you know that during your storm, जब आपको तूफान आता है, storm आता है, जो wind होता है वो बहुत तेज़ी से blow करती है, and maybe the high speed, it may even uproot trees and blow off the rooftop. और यानी कि ये सारे trees को uproot कर देती है, निकाल लेती है, और आपका rooftops को भी blow off कर देती है, उड़ा लेके चली जाती है. Yes, so have you ever played with a फिरकी? क्या आपने इस फिरकी से कभी प्ले किया है? What is फिरकी? You have seen, you can see these are the different type of फिरकी, ठीक है, and these move when there is strong air and in that direction where the air is blowing. So let's start activity 1. Activity 1 is let us make a फिरकी of your own. आपको अपनी एक फिरकी बनानी है, and then you have to follow the instructions which are shown in figure 15.2. So now what you have to do, you have to hold the stick of the फिरकी. आपको फिरकी का स्टिक होल्ड करना है, and you have to then place in different direction in an open area. आपको ओपन एरिया में फिरकी की स्टिक को होल्ड करना है, and then you have to place it in different direction. आप ओपन एरिया में खड़े होने के बाद अलग एक डायरेक्शन में उसे मूव करके देखिए. इट अ लिटिल बैक और फोर्थ, आगे पीछे करके उसे थोड़ा तरह हल्के हल्के करके मूव करके देखिए. वॉट यू विल ऑब्जर्व different things. Now see first, does the फिरकी rotate? क्या आपका फिरकी रोटेट हुआ जब आप उसे मूव करने की कोशिश कर रहे थे? You are trying it to move little bit back then forward. Then you have observed that your फिरकी is moving. The फिरकी rotate. What makes a फिरकी rotate? Moving air, isn't it? अब आपकी फिरकी कैसे मूव हुई? Obviously air की वजह से, because if air is there, moving air is there, then only your फिरकी will be able to rotate. Yes. हैव यू हैवर सीन अ वेदरकॉक? अब आप यहाँ देखिए, क्या आपने वेदरकॉक देखा है कभी? ठीक है, वेदरकॉक, व्हाट द वेदरकॉक डू? वेदरकॉक शोज द डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग एट दैट प्लेस. अब क्या होता है, ये आपके जनरली पहले के लोग ज़्यादा यूज़ करते थे वेदरकॉक, और आज भी यूज़ होता है, लेकिन आज थोड़ा कम यूज़ होता है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था ये. ठीक है, वेदरकॉक क्यों यूज़ होता है? वेदरकॉक आपको डायरेक्शन बताता है जिसमें एयर आपकी मूव कर रही है. ठीक है, जिस डायरेक्शन, अगर आपको ये फाइंड आउट करनी है कि इन विच डायरेक्शन एयर इज़ मूविंग, कौन सी डायरेक्शन में हमारे एयर मूव कर रहा है पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ आप हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वेदरकॉक को, यू कैन होल्ड आ वेदरकॉक, और आपकी वेदरकॉक जिस डायरेक्शन में मूव हो गई वही डायरेक्शन आपका एयर का आपका जो एयर ब्लो कर रही है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कर रही है. इट मीन्स एयर इज़ मूविंग इन एट दैट प्लेस वेयर द वेदरकॉक विल मूव. ओके, रोटेट. तो आपका वेदरकॉक क्या होता है? वेदरकॉक शोज द डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग एट दैट प्लेस. ओके, सो नाउ come on 15.1. Is air present everywhere around us? Now tell me, is air is present everywhere around us? So let's find out. Close your fist. आप अपना फिस्ट का मतलब है अपनी मुट्ठी को बंद करिए आप. ठीक है, आप अपनी मुट्ठी को, आप इसे मुट्ठी को अपना बंद करिए, फिस्ट बंद करिए आप. ओके, व्हाट डू यू हैव इन इट? अब आप सोचो, जब आपने अपनी मुट्ठी को, प्लीज़ लिसन एंड देन डू इट प्रैक्टिकली, देन ओनली यू विल एबल टू अंडरस्टैंड. ओके, सो मैं आपको बताते जा रही हूँ, आप परफॉर्म करते चाहिए, सुनते चाहिए. क्लोज योर फिस्ट, अपने फिस्ट को बंद करिए आप. क्या आपको आपकी हैंड में कुछ है, फिस्ट के अंदर कुछ है? ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट. आप इसे 2 दिन बार करके देखिए. नाउ आपको क्या करना है, टेक एन एम्प्टी ओपन बॉटल. ठीक है, हमने पहले देखो, हमने अपना फिस्ट बंद किया, फिर हमने ओपन किया, फिर बंद किया,
ओपन किया, बंद किया, ओपन किया, एंड देन व्हाट यू विल ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आपने देखा होगा जब आपने क्लोज किया था अपना फिस्ट फॉर अ सेकेंड्स और व्हेन यू विल ओपन इट तो आपको लग रहा था थोड़ा सा आपका मॉइस्चर लग रहा था आपके हैंड में मॉइस्चर लग रहा था, थोड़ा नरमी नरमी लग रहा था, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था पसीना आ गया, ठीक है, स्वेट आ गया. यस, व्हाट इज देयर एनीथिंग इनसाइड ऑफ इट, जब आपने ओपन किया था कि आपके अंदर आपके हैंड्स पे कुछ था. यस, व्हाट इज देयर, एयर इज देयर, बिकॉज ऑफ एयर ओनली. जो आपके हैंड में मॉइस्चर आया था वो किसकी वजह से आया था, वो एयर की वजह से आया था. इट इज़ बिकॉज ऑफ ओनली एयर यू आर फीलिंग द मॉइस्चर, यू आर फीलिंग द स्वेट. Is it clear? So if you are closing the hand and then you are opening it, it means air is there also. If nothing is there, it means air is present at that place. So air is all around us. Now we are performing another activity. You have to take an empty open bottle. आपको एक खुली हुई open bottle लेनी है. Is it really empty or does it has something inside? आप ये बताइए, अगर कोई empty bottle है, आपने कोई एम्प्टी बॉटल ली है, ठीक है, तो आप ये बताइए एम्प्टी खाली है, तो ये खाली है, ये एम्प्टी है या रियली इसके अंदर कुछ है. टर्न इट, आप उसे टर्न करके देखिए, ठीक है, घुमा के देखिए कि इसके अंदर खाली ये एम्प्टी ही है, कुछ रियली इसके अंदर कुछ है. अपसाइड डाउन इज समथिंग इनसाइड इट, आप उसे उल्टा करके देखिए, इन्वर्टेड करके देखिए, क्या इसके अंदर आपको कुछ मिलता है. नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ द बॉटल इनटू द बकेट फिल्ड विथ वाटर. अब आपको क्या करना है, एक ओपन माउथ आपको क्या करना है ऑफ द बॉटल की जो ओपन माउथ है उसे आपको बकेट के अंदर जो पानी से फिल्ड है उसमें आपको, जैसे आपने 15.4 फिगर में देख रहे हैं, आपको ऐसे परफॉर्म करना है एक्टिविटी, आपको डिप करना है. आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे जो बॉटल है, डज द वाटर एंटर द बॉटल, क्या आपकी बॉटल में वाटर एंटर कर रहा है. यू हैव टू ऑब्जर्व. नाउ आपको क्या करना है, थोड़ा टिल्ट करना है, आपको टिल्ट ऐसे करना है, थोड़ा सा आपको टिल्ट टेढ़ा करना है, टिल्ट करना है बॉटल को स्लाइटली, और आपको अब देखना है कि वाटर अब आपका एंटर कर रहा है बॉटल में. येस, डज द वाटर नाउ एंटर द बॉटल. डू यू सी द बबल्स, आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे आपके बबल्स बनने लगेंगे. डू दिस एक्टिविटी इन योर एट योर होम. आप देखेंगे बबल्स, देखिए बबल्स बनेंगे एंड दैट बबल्स आर कमिंग आउट ऑफ द बॉटल और हेयर एंड बबली साउंड, और आप एक साउंड बबली साउंड आप सुनेंगे. सो कैन यू गैस व्हाट वाज इन द बॉटल. अभी जो आपने साउंड सुनी है वो साउंड किसकी है, दैट साउंड इज ऑफ एयर, दैट साउंड इज ऑफ एयर. जो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है वो एयर की आवाज़ है, बिकॉज आपने क्या किया, आपने बॉटल को जब वाटर में आपने डाला टिल्ट करके, तो वहाँ की जो आपने देखा वहाँ पे क्या था, वहाँ जो वाटर ने क्या किया, अंदर आने की कोशिश की, ठीक है, और किसने प्लेस लिया, वहाँ पे क्या है, एयर जो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, वहाँ से जो बाहर निकल रही है, दैट इज़ द वॉइस ऑफ द एयर, वो एयर की वॉइस है. ओके, तो अगर देखिए किसी भी कंटेनर में अगर आपने वाटर फिल किया है या आपने कुछ भी फिल किया, सेंड किया है, सॉल्ट किया है, तो आप एक बात, जितना पोर्स उनके एम्प्टी रहेंगे उतने पोर्स में वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, ठीक है. और अगर आपने और वाटर, सपोज करो आप कंटेनर है उसमें ऑलरेडी वहाँ वाटर है लेकिन हाफ फिल्ड है, ठीक है, हाफ फिल्ड है, अगर वो हाफ फिल्ड है तो बाकी एरिया में वहाँ क्या प्रेजेंट है, एयर, ठीक है, जो आपको दिखाई नहीं देती. और आप चाहते हैं आपकी, अगर आपने उसे हाफ फिल किया, नाउ यू वांट टू फिल इट एट द टिल टॉप, आप टिल टॉप तक उसे फिल करना चाहते हैं, तो फिल करने के लिए पहले इसमें से किससे बाहर निकलना पड़ेगा, एयर को. जब एयर को बाहर निकलेगी एयर, तभी तो आपका बाकी पोर्शन में क्या आएगा, वाटर अपनी प्लेस लेगा, और जब वो बाहर निकलेगी तभी तो वाटर आएगा. सिमिलरली यहाँ से क्या बाहर निकला, यहाँ एयर बाहर निकली, और एयर जब बाहर निकली तो उसकी बबल्स बने, दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ द बॉटल. जो बबल्स बने वो बॉटल के बाहर आए, एयर के बबल्स, एंड दैट you hear the bubbly sound of the air that is coming out from the container या bottle. Okay, so till here we have discussed in this video. We will continue this video in the next video, so we will continue from here in the next video. Thank you.